मॉड्यूलेटर टाइप फेज डिटेक्टर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टाइप फेज डिटेक्टर, इसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे डिजिटल फेज डिटेक्टर। तो डिजिटल फेज डिटेक्टर इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज एक्सऑर टाइप, second one is flip flop type, and third one is phase frequency detector. So these are the 3 types of the digital phase detector. तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अबाउट दी जो आपका फेज डिटेक्टर है। तो फेज डिटेक्टर कंप्लीशन होगा यहाँ से, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर पे। सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स इन टुडेज लेक्चर। सो स्टार्टिंग विथ सेकेंड टाइप ऑफ एनालॉग फेज डिटेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टाइप फेज डिटेक्टर। मैंने क्यों बोला बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टाइप फेज डिटेक्टर हम लोग क्यों यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम थी स्विच टाइप फेज डिटेक्टर में, वन इज dependency on the input signal voltage amplitude, and second one is dependency on cos phi, which creates the non-linearity into the input signal waveform. So with the help of this phase detector, how we are rectifying the problem of input signal amplitude? तो उसके लिए हमने क्या किया, for limiting the amplitude of the input signal, we are converting the input signal into constant amplitude square wave. So in place of taking any kind of the variable input signal, either sinusoidal or any triangular waveform, we are using here the constant amplitude square wave. ठीक, तो जो आपकी प्रॉब्लम थी the dependency of the output in the amplitude of the input signal, it can be reduced. ठीक, तो input signal के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे constant amplitude square wave आपको यूज करना है। ठीक है, so a circuit which performs phase comparison with square wave input, that is called as balanced modulator type phase detector, and this is the connection diagram of balanced modulator type phase detector। ये उसका कनेक्शन डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें है क्या एक्चुअल में, there are 3 different differential amplifiers are used for the design of balanced modulator type phase detector। 3 different differential amplifier module क्या है? First module is this Q3 and Q4. This is the first differential amplifier module. Second is Q5 and Q6, and the third one is Q1 and Q2. So these are the 3 different differential amplifier modules are used for the design of balanced modulator type phase detector, where the input signal Vi is given at the base terminal of the differential amplifier Q1 and Q2। तो जो Q1 और Q2 का बेस टर्मिनल है, वहां से हम लोग कहाँ क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर वेव इनपुट, क्योंकि ये किसके लिए काम करता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर वेव। सो दैट इनपुट इज अप्लाइड एट द बेस टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर नंबर Q1 and Q2। ठीक, नाउ द बायसिंग और द इनपुट सिग्नल टू द Q3 Q4 and Q5 Q6, this combination of differential amplifier is to be given from the output of the VCO, क्योंकि ये जो V0 है, that V0 is nothing but the output from the voltage controlled oscillator। तो voltage controlled oscillator का जो output है, that is given at the input terminal of Q3 Q4 and Q5 Q6। अब किस टर्मिनल में पॉजिटिव जाएगा, किस टर्मिनल में निगेटिव जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके वर्किंग में output of this circuit is to be taken at the collector terminal of Q3 and Q6 transistor or the Q4 and Q5 transistor, वो डिपेंड करेगा कहां पे। ठीक, when this Q5 transistor is activated, on that condition error voltage is to be connected at the collector terminal of transistor number Q5, but if Q5 transistor is not activated, on that condition error voltage positive terminal is connected with कलेक्टर टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर नंबर Q3। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि वर्किंग में हम लोग देखेंगे कौन सा पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर एक्टिवेटेड है और कौन सा पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर नॉन एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्चुअल में वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ये काम करेगा। ठीक, सो स्क्रीन विजिबल। So in the circuit, as I told you, input voltage is given at the base terminal of transistor number Q1 and Q2। ये पोजीशन क्या है इनपुट सिग्नल को देने के लिए।
So when the amplitude of the input signal is positive, when the square wave amplitude is positive, on that condition transistor number 1 is in on condition. Transistor number 1 is in on condition, and if the output from the VCO is also positive, if the output from the VCO is also positive, let's suppose it is positive terminal, this one is negative terminal. Okay? So if the output from the VCO is also positive, on that condition transistor number Q3 and the base terminal of this positive terminal you can see is also connected to ट्रांजिस्टर नंबर Q6. ठीक, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन देखें, अगर इसके थ्रू भी आप आउटपुट ले सकते हैं आइदर विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनल आल्सो. तो इफ ट्रांजिस्टर नंबर Q, सो फ्रॉम देयर, जब देखिए आपका इनपुट वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव था. व्हेन इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, Q1 ट्रांजिस्टर आपका ऑन है, बट Q2 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड पोटेंशियल, सो दिस इज नॉट एक्टिवेटेड. सो ट्रांजिस्टर नंबर Q2 इज नॉट एक्टिवेटेड, बट ट्रांजिस्टर नंबर 1 इज इन एक्टिवेटेड कंडीशन. ठीक, ट्रांजिस्टर नंबर 1 आपका ऑन हो गया. व्हेन आउटपुट फ्रॉम द VCO इज हाई और पॉजिटिव, सो पॉजिटिव टर्मिनल देखिए कहां कनेक्टेड है, एट द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर नंबर Q3. दैट मींस ट्रांजिस्टर नंबर Q3 इज इन एक्टिवेटेड कंडीशन. ट्रांजिस्टर नंबर Q3 क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया. एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड एट द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर नंबर Q4 एंड Q5. So Q4 is not activated. Also Q5 is not activated, or it is connected to ground potential. ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और कहां से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल ऑफ Q6. So Q6 is activated. Q6 आपका क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया. ठीक है, बट एमिटर टर्मिनल ऑफ दिस Q6 and Q5 is connected to Q2, but Q2 is open circuited or ground, so no any current will flow in this particular path. यहां से कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो करंट एक्चुअल में फ्लो कहां से होगी, so the current will flow with the help of one of the current is from collector to base to this terminal, and from this side negative terminal will use this particular path. ये पाथ हम लोग यूज कर सकते हैं for the flow of the current into the circuit, क्योंकि एक्टिवेटेड आपका ट्रांजिस्टर क्या है, Q1 ही है, Q2 नॉट एक्टिवेटेड है ड्यू टू नेगेटिव साइड. ठीक, समझ में आया. तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे किस किस टर्मिनल में आप पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, किस किस टर्मिनल में नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं. जिस भी टर्मिनल में वोल्टेज आपका पॉजिटिव होगा, दैट करेस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर विल बी ऑन, अदर ट्रांजिस्टर विल बी इन ऑफ कंडीशन. ठीक, यही चीज हमने यहाँ लिखा है. इन द सर्किट इनपुट सिग्नल इज टू बी अप्लाइड to the base terminal of transistor number Q1 and Q2 connected as a differential pair, so that division of the current IL is the two collector path is controlled by it. सीधी सी बात है, जो भी कलेक्टर करंट यहां से आ रही है IL, either that will flow in this particular direction or in this particular direction, पर आगे फ्लो होगी कहां से, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ट्रांजिस्टर नंबर 1 ऑन है या 2 ऑन है. ठीक, क्योंकि अगर ये ऑफ है तो करंट विल नॉट फॉलो इन दिस पर्टिकुलर पाथ ना, इस पाथ में करंट आपकी फ्लो नहीं होगी. जो भी ट्रांजिस्टर आपका ऑन है वहीं से करंट आपकी फ्लो होगी. तो कहां से करंट को जाना है या करंट का डिवीजन किस पे डिपेंड है, Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर पे डिपेंडेंट है, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर पेयर यहाँ पे कनेक्टेड है. ठीक, तो द क्रॉस कपल्ड ट्रांजिस्टर पेयर Q3 Q4 and Q5 Q6 serve as a two set of SPDT switches which are activated by the VCO output. तो ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, Q3 Q4 and Q5 Q6 SPDT switches के थ्रू कनेक्टेड है. और वो किससे कंट्रोल हो रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड विद आउटपुट ऑफ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. इसी वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है. ये पॉजिटिव वोल्टेज आप किस टर्मिनल में दे रहे हैं, Q3 में दे रहे हैं कि Q4 में दे रहे हैं, Q5 में दे रहे हैं कि Q6 में दे रहे हैं, किस पर्टिकुलर टर्मिनल में पॉजिटिव वोल्टेज है, किस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल में पॉजिटिव वोल्टेज है, किस टर्मिनल ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल में नेगेटिव वोल्टेज है, उसी पे डिपेंड करेगा. ठीक, ये कंट्रोल किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस VCO आउटपुट V0 पे. तो द इनपुट सिग्नल Vi एंड द VCO आउटपुट V0 आर एज्यूम्ड टू बी हाई इनफ. तो ये देखते हैं आगे वेवफॉर्म के साथ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये चीज. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, ये दिस इज योर इनपुट सिग्नल Vi. ये कहां पे कनेक्टेड है, हियर एट द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर नंबर 1 and 2. यहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल. दिस इज द आउटपुट सिग्नल
दैट मीन्स द आउटपुट फ्रॉम द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ये आपका पोजीशन यहाँ पे, ठीक। दिस वन इज योर एरर वोल्टेज जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है आउटपुट टर्मिनल में, ठीक है। सो दीज आर द इनपुट एंड दिस वन इज द आउटपुट, ठीक है। ऊपर की जो टू वेव फॉर्म है दीज आर द इनपुट्स वेव फॉर्म, और जो लास्ट की वेव फॉर्म है थर्ड, दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। तो एट द फर्स्ट कंडीशन जब हम लोग इस पॉइंट तक ले रहे हैं, इस जो डॉटेड लाइन है ना, जब यहां तक हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इन दिस पर्टिकुलर टाइम द लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज हाई, ऑल्सो द लेवल ऑफ द VCO आउटपुट इज हाई, ठीक। यहां पे देखिए यहां से यहां तक जो आपका VS इनपुट है, इनपुट वोल्टेज, ऑल्सो द आउटपुट फ्रॉम द VCO इज इन हाई कंडीशन, ठीक है। व्हेन इट इज इन हाई कंडीशन, when Vi and V0 both are in high condition during the time 0 to pi minus 5, क्या होगा, ट्रांजिस्टर नंबर Q1 एंड ट्रांजिस्टर नंबर Q3 आर ड्रिवन ऑन, जो भी मैंने डिस्कस किया। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, Q1 ट्रांजिस्टर से, तो Q1 आपका ऑन हो गया। ऑल्सो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस output from the VCO is connected at the base terminal of transistor number Q3, so Q3 is also on. So Q1 and Q3 are in on condition and the current IE flows through transistor number Q1 and Q3. इसके थ्रू आपका IE which is equal to IL है, वो आपकी फ्लो कर जाएगी। So based on that the value of voltage, output voltage will be how much, IE into RL, क्योंकि दोनों आपके क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल करंट है, ठीक है। तो the value of VE is equal to IE into RL। सेकेंड पीरियड में देखते हैं, ठीक है। यहां तक का आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां पे करंट की वैल्यू कितनी, VE is equal to, no it is minus IE into RL ना, it is minus IE into RL, ठीक है। ये साइन का इंटरचेंज है, that would be positive। So on that condition the value of error voltage is minus IE into RL। Now for next period pi minus 5 to pi, ये जो आपका पीरियड है यहां से यहां तक का, यहां पे इनपुट वोल्टेज इज हाई, Vi is high, but the output from the VCO is low, output from the VCO is low। So देखिए किस किस में कनेक्टेड है, इनपुट आपका हाई है, व्हेन इनपुट इज हाई ट्रांजिस्टर नंबर 1 इज इन ऑन कंडीशन बट आउटपुट इज लो। आउटपुट लो का मतलब ये निगेटिव टर्मिनल है, दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड एट द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर नंबर Q4 एंड Q5 इससे कनेक्टेड है, ठीक है। Q5 हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि Vi के थ्रू Q1 आपका ऑन कंडीशन, तो व्हेन Q1 इज इन ऑन कंडीशन Q2 इज इन ऑफ कंडीशन, तो इधर से तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, दैट्स व्हाई Q5 को ऑन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। So from there, as per the input voltage of the transistor number Q4 is high, so transistor number Q4 क्या हो गया, ऑन कंडीशन में हो गया। Q1 भी आपका क्या है, ऑन कंडीशन में। तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, Q1 and Q4 both the transistor are in on condition, तो करंट के लिए पाथ कौन सा मिलेगा, ये यहां से IL with the help of transistor number Q4 it will follow this particular path and the value of current is what, current is plus IE into RL, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, इस पाथ के लिए। when the value of input voltage is low, जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू लो होगी, on that condition ट्रांजिस्टर नंबर Q1 will be in off condition but Q2 will be in on condition, ठीक है। जब Q2 ऑन होगा तो हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, either this particular path or this particular path, ठीक है। तो एट ए मोमेंट आइदर ट्रांजिस्टर नंबर 1 विल बी इन ऑन कंडीशन और द ट्रांजिस्टर नंबर 2 विल बी इन ऑन कंडीशन एंड बेस्ड ऑन दैट द करस्पॉन्डिंग आउटपुट विल बी जनरेटेड, ठीक। सो द वैल्यू ऑफ एवरेज वोल्टेज, क्योंकि हम लोग को एवरेज चाहिए कि एवरेज एरर कितना है हम लोग को आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइकिल को हम लोग को लेने के बाद, तो द एवरेज एरिया V एवरेज विल बी इक्वल टू 1 by pi एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A2। एरिया ऑफ A1 क्या हो गया, IE into RL into 5, एरिया A2 क्या हो गया, IE into RL pi minus 5, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करिए आप, सिंप्लीफाई करने से यहां से मैंने क्या ले लिया, I into RL एंड IE into RL हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ का 5 एंड दिस माइनस माइनस प्लस, सो 5 and 5 2 5
डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आई क्यू. आई कैन बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई क्यू, ट्वाइस ऑफ द क्यूसेंट करंट. सो ट्वाइस ऑफ आई क्यू आर एल डिवाइडेड बाई पाई 2 पाई माइनस पाई. जैसे हमने पाई को कॉमन लिया यहाँ से, और इट कैन बी रिटन एज 2 को और हम लोग कॉमन ले लें तो 4 आई क्यू आर एल डिवाइडेड बाई पाई 5 माइनस पाई बाई 2. तो ये आपको क्या मिल रहा है, एवरेज एरर वोल्टेज. ठीक, तो एवरेज एरर वोल्टेज आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ. स्विच टाइप में क्या प्रॉब्लम था, जो आपका एरर वोल्टेज था दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट वोल्टेज. यहां पर देखिए इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो जो इनपुट वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वो हमने रेक्टिफाई कर लिया. सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, द एवरेज एरर वोल्टेज वाज डिपेंडेंट ऑन cos phi. एवरेज इनपुट वोल्टेज वाज डिपेंडेंट ऑन cos phi, जिसकी वजह से जो आपका आउटपुट था दैट रिप्रेजेंट्स द नॉन लीनियरिटी इनटू द वेवफॉर्म. ठीक, यहां पे आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है, ओनली इन phi. ठीक, that's why we are getting some linear relationship. So both the problems associated in the case of switch type phase detector has been rectified in case of balanced modulator type phase detector. That's why whenever we are choosing the analog phase detector for in case of the PLL, we are using there the balanced modulator type phase detector only. ठीक, तो बैलेंस मॉडुलेटर टाइप फेज डिटेक्टर हम लोग यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं, मैंने बताया. जो दोनों प्रॉब्लम थी, इनपुट वोल्टेज के एम्पलीट्यूड में डिपेंडेंसी और कॉस फाई जिसकी वजह से नॉन लीनियरिटी एसोसिएट हो रहा था, वो दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाते हैं. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ बैलेंस मॉडुलेटर टाइप फेज डिटेक्टर. आई होप दैट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक, नाउ मूविंग फर्दर टू डिजिटल फेज डिटेक्टर. ठीक, तो डिजिटल फेज डिटेक्टर में कितने टाइप्स के हम लोग डिजिटल फेज डिटेक्टर यूज कर सकते हैं. पहले बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिजिटल फेज डिटेक्टर. वन इज XOR टाइप फेज डिटेक्टर, सेकंड वन इज flip flop phase detector, and third one is phase frequency detector. So these are the 3 different types of detector or digital phase detector we can use in case of phase detector for the design of the phase detector. तो फर्स्ट वन इज XOR फेज डिटेक्टर. तो XOR फेज डिटेक्टर बिल्कुल सिंपल है. XOR क्या, तीनों ही फेज डिटेक्टर बहुत सिंपल है. जो आपका प्रॉपर XOR का ऑपरेशन है वही चीज हम लोग वहां पे कनेक्ट कर देते हैं, वही सर्किट हमने वहां पे कनेक्ट कर दिया है. XOR के केस में यू हैव टू कनेक्ट XOR सर्किट. In case of the flip-flop phase detector, you have to connect the flip-flop, and in case of the phase frequency detector, you need to connect one different type of circuit. We will see later. तो XOR का देखिए ऑपरेशन क्या होता है. तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द एक्सक्लूसिव और फेज डिटेक्टर. व्हेन बोथ द इनपुट आर लो, इन केस ऑफ XOR सर्किट, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, आउटपुट विल बी लो. बोथ द इनपुट्स आर हाई, आउटपुट विल बी लो. ठीक, सो इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम, अगर दोनों इनपुट आपके सेम है तो आउटपुट क्या मिलता है, लो, इन केस ऑफ XOR. एंड इफ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, if both the inputs are different, output will be high. ठीक है, जब आपके दोनों इनपुट डिफरेंट है, यहाँ पे लो हाई, either that will be high low, output is in high condition. ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिया, if the input this represents the signal source FS, this represents the output of the VCO, and third one is the total output voltage generated with the help of phase detector. ठीक है, so when input voltage is high and output from the VCO is low, so when both the inputs are different, output is high. तो जैसे इस कंडीशन के बाद देखिए, when both the inputs are high और both the inputs are same, तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, low. Similarly here, when both the inputs are different, output is high. When both the inputs are same, output is low. So इस टाइप से XOR phase detector काम करता है, बहुत सिंपल. But the range of this XOR phase detector is what? Up to pi only. So this is the limitation of XOR type phase detector. It works only in the range of 0 to 5. ठीक है, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, फेज एंगल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. तो दैट प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड. देखिए जितने भी फेज डिटेक्टर है या कोई भी सर्किट आता है मार्केट में, तो कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम है प्रीवियस सर्किट में, तो उसको रेक्टिफाई करते हुए ही हम लोग नई सर्किट को लॉन्च करते हैं. सेम चीज यहाँ पे था. एनालॉग केस में हमने देखा जो प्रॉब्लम थी आपके
बेसिक सर्किट में स्विच टाइप में, उसको हम लोग रेक्टिफाई किसमें किया, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर। सिमिलरली हियर इन केस ऑफ द डिजिटल फेज डिटेक्टर, एक्सऑर फेज डिटेक्टर सबसे फर्स्ट हमने लॉन्च किया, बट द प्रॉब्लम विद द एक्सऑर फेज डिटेक्टर इज व्हाट, द रेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज अप टू फ्रॉम 0 to 5। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग कहां मूव कर गए, टू द फ्लिप फ्लॉप सर्किट। ठीक, फ्लिप फ्लॉप में आपको क्या मिलता है, द रेंज ऑफ द आउटपुट विल बी फ्रॉम 2 pi। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है, मैंने देखिए मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे, द एडवांटेज ऑफ फ्लिप फ्लॉप फेज डिटेक्टर इज दैट the DC output voltage is linear over 2 pi range up to 360 degree as opposed to 1 to 2 pi, but the range of the flip-flop phase detector is from 0 to 2 pi. But the disadvantage of the flip-flop phase detector is what? It requires more filtering than XOR phase detector. ये इसके साथ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फिल्टरिंग आपको ज्यादा करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द एक्यूरेट आउटपुट। ठीक, इसमें आउटपुट कैसे मिलता है, आउटपुट विल फॉलो द लीडिंग एज ऑफ द स्विच और रीसेट पिन। यहाँ पे सिंपली हमने क्या लिया हुआ है, एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप किस टाइप से आउटपुट जनरेट करता है, इट विल जनरेट द आउटपुट फॉर लीडिंग एज ऑफ द सेट और रीसेट पिन। ठीक है, so when the set pin is high, Fi is to be given at the set pin, F0 is given at the reset pin. Okay, so when Fi is high, on that condition output is also high. Okay, and it will remain high up to when the reset pin is high condition. तो जब तक आप reset pin नहीं अप्लाई करेंगे, up to on that time you are getting the output voltage. तो जैसे reset pin आपने अप्लाई किया, output will move from positive to 0 और high to low. ठीक, and it will remain high जब तक कि आपका next set pin नहीं आ जाता। अब जब तक आपका next set pin leading edge आप अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से आपने set pin को अप्लाई किया, output is again in high condition and it will remain high up to when, जब तक आप reset नहीं अप्लाई। जैसे आपने reset अप्लाई किया, again output is low. So this is the basic operation of flip-flop phase detector. Then the third one is phase frequency phase detector. तो phase frequency phase detector में हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हमने 4 different D flip flop यूज किया हुआ है, साथ में एक चार्जिंग पंप that is connected with the help of capacitor for charging and discharging of the capacitor. ठीक है, so as per the working of this phase frequency detector, if the two input frequencies are same, अगर हम लोग लेके चलते हैं, अगर if the two input frequencies which are to be applied at the input terminal of the flip flop are high, same, on that condition QA and QB are never same. जो QA है और QB है never same. Both the frequencies are same, that will not set function like a dual flip flop. ठीक है, तो क्या चीज मिला आपको, if both the input frequencies are same, on that condition this circuit will acting like a dual D flip flop, and if both the frequencies are not same, either QA और QB will be set. तो उस कंडीशन में या तो QA आपका सेट होगा या तो QB सेट होगा, and these two flip flop then serve as an out of frequency detector. और उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि कोई एक फ्रीक्वेंसी आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, कोई एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ Fi is at least twice as fast as F0, then Q and QB will high all the time. तो अगर दोनों को हाई करना है तो जो Fi और F0 के बीच में डिफरेंस है, तो F0 आपका जस्ट डबल होना चाहिए किसके, इनपुट फ्रीक्वेंसी के। ओनली ऑन दैट कंडीशन इट विल रिमेन इन हाई कंडीशन और आपकी फ्रीक्वेंसी की ट्रैकिंग हो जाएगी। ठीक, तो जब तक ये डबल फ्रीक्वेंसी है एटलीस्ट, तब तक QA और QB दोनों सेट कंडीशन में दैट मींस बोथ द फ्रीक्वेंसीज आर सेम। ठीक, बट जैसे ही इनके बीच का डिफरेंस कम हुआ या तो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हुई, तो आइदर QA और QB विल नॉट बी सेट, एंड ऑन दैट कंडीशन देयर आपको क्या पता चल जाएगा, देयर इज आउट ऑफ रेंज फ्रीक्वेंसी इज डिटेक्टेड। ठीक,
So this is the operation of phase frequency detection. So these are the three different types of the digital phase detector: XOR type, flip-flop type, and phase frequency detector. ठीक है? So I hope phase detector part has been clear to all of you. So this is all about first component of phase detector. Next one is voltage controlled oscillator. But for voltage controlled oscillator I think time is not enough, क्योंकि हम लोग को इसमें बहुत कुछ करना है, circuit and derivation. So in our next lecture we will discuss the voltage controlled oscillator. We are completing this thing in up to digital phase detector only. यहाँ से हम लोग आज का lecture complete करते हैं. If anyone has any doubt you can ask. Any doubt? Okay. ठीक है. So thank you so much. In case of no any doubt, so test your attendance. Next lecture we will discuss the voltage controlled oscillator.